everyone, we have started classification of elements and periodicity in properties. In the last video, we have discussed about Daubeney's triad, Newland's law of octaves and a small part of Mendeleev's periodic law. Here are the statements and drawbacks of these laws. The first was Daubeney's law and we name it as Daubeney's triad. Stating it as when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass in a group of 3, then the mass of the middle element was nearly the average of other two. Taking an example here, that if we arrange 3 elements in the increasing order of their atomic mass, then to find the mass of the middle element, we find the average of the masses of other two. Here it is that to find the mass of sodium, this is the mass of lithium plus mass of potassium. To find the mean, it is the sum of observation divided by total number of observations. So here are 2 observations, so we have divided it by 2. And finally the answer is 23, which is the mass of sodium. So this we have discussed earlier also, that if we arrange elements in the increasing order of their atomic mass, this was the basis for the arrangement of the elements in a group of 3. That is why it was also termed as triad. But it was having a drawback, that inability to arrange all the elements known at that time according to this arrangement. जितने elements उस time पर पता थे, उन सबको इस तरह के arrangement में arrange नहीं किया गया. Only 3 triads were given by Daubeney. Means in all only 9 elements he was able to arrange in the form of triads. Next was Newland's law of octaves. When the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass again, then the properties of every 8th element are similar to the first one. Means he extended his approach only. बेस इसने भी एटॉमिक मास को कंसिडर किया और इसने भी एटॉमिक मास को किया, लेकिन इसने एलिमेंट्स का 3-3 का ग्रुप बनाया, इसने 8 का ग्रुप बनाकर कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के जैसी होंगी. लेकिन इसके भी क्या ड्रॉबैक्स थे कि इसने जो अरेंजमेंट दिया वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था. जैसे इसका सिर्फ 9 एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा था, इसका सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई हो रहा था. बाकी के एलिमेंट्स को इसने टेबल में अरेंज तो किया, लेकिन जो ट्रेंड, जो सीक्वेंस उसने बताया वो उन सब पर एप्लीकेबल नहीं था. Next was that he discovered 56 elements and he said that after 56 elements no more elements will be discovered. लेकिन जब नेक्स्ट एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो इसके लॉ को एक सेटबैक मिला कि आपके अकॉर्डिंग 56 के बाद एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकते थे, बट नाउ वी आर विद द न्यू एलिमेंट्स. नेक्स्ट वाज इन ऑर्डर टू फिट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, न्यूलैंड प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन द सेम पोजीशन which differed in their properties. उनकी आपस में प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें एडजस्ट करने के लिए उसने किसी भी तरह करके पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया. सो दैट वाज द ड्रॉबैक कि हम इसी प्रॉब्लम को तो दूर करना चाह रहे थे कि प्रॉपर्टीज किसी तरह से, इस तरह से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हो कि हमें प्रॉपर्टीज याद ना रखनी पड़े. अगर हमें फोर्सफुली उन्हें कहीं एडजस्ट करना है तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना ही पड़ेगा. सो दैट वाज द ड्रॉबैक. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद लोथर मायर एक साइंटिस्ट था जो कोशिश करने लगा कि न्यूलैंड लॉ ने जो अरेंजमेंट दिया उसके ड्रॉबैक्स को कैसे दूर किया जाए. एंड साइड बाय साइड डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन इट. both of the scientists, they were working parallel to each other but on different places, और उनका काम भी almost एक जैसा था. But the thing was that Mendeleev presented his work earlier, so whatever work was done, it was named after the name of this scientist, that is Mendeleev. When he started his work, 63 elements were known. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जब तक दिया गया था तब तक 56 एलिमेंट्स पता थे. धीरे धीरे और एलिमेंट्स की जब डिस्कवरी हुई तभी उस लॉ को एक सेटबैक मिला, दैट लॉ इज हैविंग अ ड्रॉबैक.
उसको दूर करने के लिए अब और जो कोशिश की गई, उसमें मेंडलीव ने जब अपना काम करना शुरू किया तो 63 एलिमेंट्स they were known at that time. He worked on those 63 elements and tried to arrange those elements in the order of their properties for the easy study and to save the time. The arrangement which he did is he arranged the elements in periods and groups. उसने कहा कि अगर हम elements को horizontal rows और vertical columns में arrange कर दें तो उनकी स्टडी करनी आसान हो जाएगी, which make the study systematic. So he named the horizontal rows as periods and vertical columns as groups. During his study, he studied that between the known elements, the properties according to which he was arranging the elements, उसको ऐसा लगा कि जो दो known elements हैं उनके बीच में कोई और एलिमेंट आना चाहिए उसके पीरियोडिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। उनके लिए, उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त पता नहीं थे लेकिन उसकी स्टडी में उसे लग रहा था कि इन द टाइम्स टू कम वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे, उसके लिए उसने गैप्स छोड़ दिए ताकि जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो तो वो उन गैप्स में फिल हो जाए और उसका पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब ना हो। इसी के साथ उसने एक होप भी क्रिएट कर दी कि इन द टाइम्स टू कम न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड। जैसे कि न्यूलैंड ने कहा था कि 56 के बाद एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हो सकते, इसने कहा कि नहीं, इसके बाद भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे एंड आई एम लीविंग द गैप फॉर दोज एलिमेंट्स आल्सो। नेक्स्ट इज प्लेस फॉर द नोबल गैसेस। अब वैसे तो इसने अपने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। The reason being noble gases they were discovered very late. The reason for that noble gases are not very much reactive and their concentration is also very low. That is why they were not noticed very long. लेकिन जब उनका पता चला तो इसके पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें लास्ट के ग्रुप में ऐड कर दिया गया, जिससे इसका पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो इन मेरिट्स की वजह से बहुत देर तक इसके पीरियोडिक टेबल को कोई चैलेंज नहीं कर सका। दैट इज व्हाई मेंडलीव वाज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो। लेकिन इसके इतनी सारी मेरिट्स के बाद भी इसके पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स थी, डीमेरिट्स थी। दोज वर, फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल and the first shell can accommodate maximum of 2 electrons only. So in that case it has the tendency to gain 1 electron, and being having 1 electron in the shell, it also have the tendency to lose that electron. So according to these properties, hydrogen show resemblance with the properties of group 1 as well as halogens. group 1 की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और हेलोजेंस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और हाइड्रोजन ये दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करता है। तो द प्रॉब्लम वाज वेयर टू प्लेस दिस हाइड्रोजन। सेकेंड वाज आइसोटोप्स। जब इसने काम किया तब आइसोटोप्स का पता नहीं था, लेकिन जब आइसोटोप्स के बारे में पता चला कि आइसोटोप्स होते क्या हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि एलिमेंट तो सेम है, इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन तीनों को पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह देनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये एलिमेंट सेम है, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही एलिमेंट को 3 अलग अलग प्लेसेस दी जाए। सो दिस वाज द ड्रॉबैक दैट नो प्रोविजन वाज देयर टू प्लेस आइसोटोप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। थर्ड वाज एनॉर्मस पोजीशन ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। कुछ जगह पर क्योंकि इसने जो अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इसने एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज किया था, लेकिन किसी किसी जगह पर उसने देखा कि अगर वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एलिमेंट्स को अरेंज करे तो प्रॉपर्टीज में chaos क्रिएट हो रहा था। तो उस chaos को ठीक करने के लिए उसने ज्यादा मास वाला एलिमेंट पहले रख दिया, कम मास वाला बाद में रख दिया। सो
At some places this anomaly was there. The next is position of lanthanoids and actinoids, जो कि उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए उसके लिए भी इसने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई प्रोविजन नहीं दिया. मोरओवर लास्ट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि उसने ये नहीं बताया कि मेरे पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट तो कर रही है पीरियोडिकली, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट पीरियोडिसिटी, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट रेपिटेशन. So these all were the demerits or drawbacks of the Mendeleev's periodic table. लेकिन काफी समय तक इन demerits को दूर करने के लिए और इन merits को चैलेंज करने के लिए कोई और अप्रोच आगे नहीं आई. That is why he was considered as father of periodic table. Then in 1913 Henry Moseley he studied that कि अगर हम मेटल को हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करें तो उसने ऑब्जर्व किया कि अगर हम उसमें हम देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर. उसने देखा कि अगर हम मेटल को इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं. और उसने क्या नोटिस किया कि स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर. जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस का स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी. और उन दोनों वैल्यूज के लिए उसने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसके लिए उसे स्ट्रेट लाइन मिली. और वहां से उसे ये आइडिया मिला कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग एटॉमिक मास, इफ वी टेक एटॉमिक नंबर फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, देन by doing this he thought that why not to check that all these demerits they will be rectified or not. उसने सोचा कि अगर हम एटॉमिक नंबर को बेस बनाकर एलिमेंट्स को अरेंज करें तो क्या ये सारे demerits दूर हो जाएंगे. Then he tried for that and what he observed that most of the demerits they were rectified by doing this. अगर हम एटॉमिक नंबर को आधार मान लें तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि सब में एटॉमिक नंबर सेम है तो सभी को एक ही जगह पर रखा जाएगा, अलग अलग जगह देने की जरूरत नहीं है. देन एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, जहां ज्यादा मास वाले एलिमेंट को पहले रखा गया था और कम वाले को बाद में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखा गया, तो ज्यादा मास वाले का एटॉमिक नंबर कम ही था और कम वाले का ज्यादा था, तो वो भी जो एनॉमली थी वो भी दूर हो गई. इसी तरह लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, इसकी और हाइड्रोजन की प्रॉब्लम स्टिल दे आर नॉट रेक्टिफाइड. एंड प्लस वन मोर थिंग वाज clarified by this rule that between the two known elements how many unknown elements are to be discovered. Suppose we are known with the element having atomic number 7 and atomic number 10, means in between 7 and 10, 8 and 9 there are two more elements which are to be discovered yet, जिसकी अभी डिस्कवरी होनी है. इसके बेसिस पर हमें ये चीज क्लैरिफाई नहीं होती थी कि हमें बीच का एलिमेंट कोई डिस्कवर करना है या नहीं. कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो दो नोन एलिमेंट्स के बीच के एटॉमिक मास का होगा या नहीं होगा. दिस थिंग वाज आल्सो नॉट क्लियर, बट इट गॉट क्लैरिफाइड बाय modern periodic law. Accordingly, Henry Moseley gave the statement, properties of the elements are periodic function of their atomic number. So most of the drawbacks they were clarified by this law, but still position of hydrogen because of its properties and position of lanthanoids and actinoids, still they are the drawbacks of modern periodic law. Thank you.